નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીટીપીએલની ગુજરાતી ચેનલના સર્જક સાથે સંવાદ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, સર્જક સાથે સંવાદમાં આજે આપણે હિન્દી સાહિત્યના અગ્રણી કવિ સાથે વાત કરવાની છે। અશ્વિની પાંડેજી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશ અમેઠી વિસ્તાર, પણ વર્ષોથી 3 પેઢીથી તેઓ પોતે અહીં વસવાટ કરી રહ્યા છે ગુજરાતમાં, ચાંદખેડામાં। અને એમની પણ 3 પેઢી થઈ છે, એમની દીકરીની દીકરો પણ, એટલે એમના પણ સંતાનો અહીં જન્મી ચૂક્યા છે ગુજરાતમાં અને ગુજરાતના શ્વાસ લે છે। આખો ભારત એક છે, ભારત માતાના આપણે સૌ સંતાનો છીએ, પણ ઉત્તર પ્રદેશની સુગંધ તેઓ ગુજરાતમાં લાવીને પાછા અહીં સુગંધમય વાતાવરણ ઊભું કરી રહ્યા છે। મૂળ તો શિક્ષણના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે આ જીવ જીટીપીએલ પરિવાર સાથે, અને આપ જીટીપીએલ પરિવાર વતી અને આપ સૌ દર્શક મિત્રો વતી એમનું સ્વાગત કરવું છે। નમસ્કાર સાહેબ। નમસ્કાર। અશ્વિન પાંડેજી, આમ તો મૂળ એટલા માટે તો વાત કરવાની કે આપ મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના છો, અમેઠીના, ત્યાં જન્મ આપનો, ગુજરાતમાં વર્ષોથી રહો છો, તો આ બધી જ આપના દાદા અહીં ટેક્સટાઇલમાં મિલ સાથે જોડાયેલા હતા અને એ રીતે આપને આવવાનું થયું, અહીંયા આપનું શિક્ષણ થયું, આપે અહીંયા વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ, શિક્ષણના વ્યવસાય સાથે સંકળાયા, કદાચ નિવૃત્તિ પણ, અને પછી અત્યારે ગુજરાતમાં આનંદ લઈ રહ્યા છો સાહિત્ય સાથે જોડાઈને। તો આ બધી જ વાતો આપના મોઢે સાંભળવી છે, આપના સ્મરણો, ક્યાંથી આપના અમેઠીથી લઈને ગુજરાતના આપની કર્મભૂમિ, કઈ રીતે આપ ગુજરાત આવો છો, કઈ રીતે આપનું શિક્ષણ થાય છે, કઈ રીતે સાહિત્ય સાથે પ્રેમ થાય છે। પંડ્યા સાહેબ, હું 1964માં એટલે 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો। એ વખતે મારા દાદાજી અહીંયા મિલ વર્કર તરીકે કામ કરતા હતા અને અહીંયા આવ્યો હતો રહેવા માટે। તો એ વખતે આર્થિક સ્થિતિ બહુ સારી ન હતી અને દાદાજી બધું ગામનું પણ સંભાળતા હતા અને અહીંયા પણ જોતા હતા। ત્યારે કાલુપુર પુલ નીચે સરસપુરમાં અમે રહેતા હતા એક ચાલીમાં, અને ત્યાંથી રાજસ્થાન હિન્દી હાઈસ્કૂલ જે છે અત્યારે શાહીબાગમાં, ત્યાં અમે લોકો ચાલીને જતો હતો ભણવા માટે। ત્યાંથી SSC કરી, એમાં ડિસ્ટિંક્શન માર્ક્સ હતા મારા। પછી હિન્દી મીડિયમથી ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ગયો અને BSc ફિઝિક્સથી કમ્પ્લીટ કર્યું। એ વખતે મારા કાકાનો વિચાર હતો કે હું વકીલાત કરું, એટલે મેં 3 વર્ષ LLBના પૂરા કર્યા। પણ એ સમય સંજોગને લીધે એ જે સંસ્થામાંથી હું રિટાયર થયો છું, ત્યાં જ એક જગ્યા હતી પ્રાઇમરી સેક્શનમાં, ત્યાં મને બોલાવવામાં આવ્યું કે થોડા દિવસ સંભાળો અને પછી કોર્ટ પર જજો। એમાં હું ગયો, પછી મને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવી ગયો। ત્યારે ત્યાંના સંચાલકે કહ્યું કે તમારે આમાં રહેવું હોય તો પછી B.Ed કરવું પડે, અને 1979માં મેં B.Ed કર્યું। ત્યાં જ પછી હાઈસ્કૂલ, હાયર સેકન્ડરીમાં થયો, અને 1986માં દ્વિતીય આચાર્ય તરીકે ત્યાં મારી નિયુક્તિ થઈ। એ પછી છેલ્લે હું પ્રિન્સિપલ પદથી 2012માં રિટાયર થયો છું। એ વખતે 1989 અને 90ની વાત હશે, હું તો સાયન્સનો વિદ્યાર્થી, ફિઝિક્સ અને મેથેમેટિક્સ ભણાવતો હતો, પણ સત્સંગનો પ્રભાવ અથવા મા સરસ્વતીની કૃપા કહેવાય કે એવો સત્સંગ થયો કે મને એક કવિ મિત્ર મળ્યા કે તમે આવું લખો છો અને આગળ લખવાનું રાખો, તમારામાં કંઈક કવિતાના બીજ છે। એ હતા ડૉક્ટર કિશોર કાબરા અને શ્રી રામચેત વર્મા। મેં ખાલી મજાકમાં શરૂઆત કરી, અને ત્યારથી 2-3 વર્ષમાં તો મારી એક ગઝલની એક આખી પુસ્તક પ્રકાશિત થઈ ગઈ, જે હિન્દી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા પુરસ્કૃત પણ થઈ છે, અને 1993-94માં દ્વિતીય પુરસ્કાર આખા ગુજરાતમાં એને મળ્યો છે। એ પછી દોહામાં પણ હું લખતો હતો। 2001માં દોહા સંકલન 707 દોહા છે એમાં, અને એને પણ ખૂંટી લટકી ધૂપ એનું શીર્ષક છે, એને પણ પુરસ્કાર મળ્યું છે, અને સાહિત્ય અકાદમીના અનુદાનથી એ છપાયેલી છે। 2013માં ગીત અને ગઝલ આ 2 વિધાઓ ઉપર જે સંકલિત પુસ્તક છે, એ શાખ મધુમાસ, આ 3જી પુસ્તક મારી પ્રકાશિત થઈ છે। એ પછી પણ અત્યારે 4થી પુસ્તક પણ તૈયાર છે પ્રકાશનમાં જવા માટે। તો આ મારી કાવ્ય યાત્રા રહી, સાહિત્ય યાત્રા રહી છે। તો કુદરતની ઈચ્છા જ હું માનું છું કે હું સાયન્સનો વિદ્યાર્થી રહ્યો અને આ સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં આવ્યો, કલાના ક્ષેત્રમાં આવ્યો, એ મારું સૌભાગ્ય કહેવાય। વાહ,
તો કુલ કેટલા પુસ્તકો પ્રગટ થયા સર આપના? મારા વ્યક્તિગત 3 પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે, અત્યારે ચોથી પ્રકાશિત થવાની તૈયારીમાં છે અને એક સંપાદન છે, અને સંકલનોમાં તો ઘણા બધામાં પ્રકાશિત થઈ છે. લગભગ 15 થી 20 પુસ્તકોમાં સહયોગી સંકલનમાં મારી રચનાઓ આવેલી છે. વાહ વાહ. અશ્વિનીજી, બીજો પ્રશ્ન એ કરવો છે કે પાંડેજી જ્યારે આ સાહિત્યનું કામ કરતા હોય, શિક્ષણનો વ્યવસાય જોડે હોય, તો પરિવારમાં કોણ કોણ છે અને પરિવારનો સહયોગ કેવો રહે છે? પરિવારમાં મારી 2 દીકરીઓ છે અને 2 દીકરાઓ છે. આમાં 3 તો હવે પરિણીત થઈ ગયા છે અને મારી ત્રીજી પેઢી પણ અત્યારે 12મા ધોરણમાં ભણે છે. તો લગભગ એમાંથી 3 તો શિક્ષક લાઈનમાં જ છે, ટીચિંગ લાઈનમાં જ છે. 2 દીકરીઓ જે ટીચિંગ લાઈનમાં છે અને એક છોકરો પણ છે, અને પુત્રવધુ પણ એક પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં જાય છે, અને એક છોકરો છે એ MBA કરીને MSc કરીને ત્યારે બેંગ્લોરમાં છે. અચ્છા, પરિવારનો સહયોગ કેવો રહે આપ જ્યારે સાહિત્ય? પરિવારનો સહયોગ રહે છે. એમને એક તો પ્રસન્નતા થાય છે કે ક્યાંથી હું ક્યાં પહોંચી ગયો હું. તો એમાં ટ્યુશન ભણાવતો હતો અને ફિઝિક્સ અને મેથેમેટિક્સ ભણાવતો હતો, સ્કૂલમાં હતો. હવે આ કવિતાના ક્ષેત્રમાં આ રીતે જોઈએ છે તો આ લોકોને ખૂબ ખુશી થાય છે અને પ્રોત્સાહન બી આપે છે. અત્યારે રહેવાનું ચાંદખેડામાં છે. ત્યાં પોતાનું મકાન? હા, પોતાનું મકાન છે. અશ્વિનીજી, બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે આપને પુસ્તકોને એવોર્ડ કેટલા મળ્યા છે અને વ્યક્તિગત એવોર્ડ આપને કેટલા? વ્યક્તિગત તો હવે એટલે એકદમ જવાર ઉપર કે સમાજ દ્વારા મારે બ્રાહ્મણ સમાજ, સરયુપારી બ્રાહ્મણ સમાજ તરફથી સમાજ ગૌરવનો પુરસ્કાર મળ્યો છે, અને અમારા ચાંદખેડામાં જ્યાં લોકલ અખબારો છે એ લોકોએ ચાંદખેડા રત્ન તરીકે પણ સન્માનિત કર્યા છે. અને બીજી સંસ્થાઓ છે લખનઉ દ્વારા, મધ્યપ્રદેશ દ્વારા, મથુરા દ્વારા, એમાં ગીત સ્પર્ધાઓમાં એ રીતે પણ મને સર્ટિફિકેટ પુરસ્કાર મળ્યા છે એમાં. અને સાહિત્ય અકાદમી ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ 3 પુસ્તકોમાં એકમાં તો અનુદાન મળ્યું છે અને 2 પુસ્તકોમાં દ્વિતીય પુરસ્કાર આખા ગુજરાતમાં મારી ચોપડીઓને મળ્યું છે. બહુ સરસ, અભિનંદન સર. धन्यवाद. તમારી आपकी कुछ कविताएं, आपके कुछ दोहे आपके मुंह से दर्शकों को सुनाइए आप. जी हाँ, हिंदी की कविताएं आपकी. ठीक है, मैं पहले एक 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ. हाँ जी. मेरा ये मानना है कि माँ सरस्वती की कृपा से ही ये सब होता है और हम मात्र उसके निमित्त हैं. हाँ जी. ये 4 पंक्तियां हैं कि मीत मन से मन मिला तू और स्वर से स्वर मिला. मीत मन से मन मिला तू और स्वर से स्वर मिला, शब्द गीतों में ढले कुछ इस तरह अक्षर मिला. वाह. और दर्द में भी मुस्कुराते गुनगुनाते हैं सदा. दर्द में भी मुस्कुराते गुनगुनाते हैं सदा, भाग्यशाली हैं जिन्हें माँ शारदे का वर मिला. भाग्यशाली हैं जिन्हें माँ शारदे का वर मिला. और कुछ दोहे प्रस्तुत हैं. इरशाद. कि मीरा तुलसी सूर हो या रहीम रस खान. मीरा तुलसी सूर हो या रहीम रस खान, और शब्दों से सबका रहा रिश्ता एक समान. शब्दों से सबका रहा रिश्ता एक समान. और अपने अपने कर्म हैं, अपनी है तकदीर. अपने अपने कर्म हैं, अपनी है तकदीर. कोई दास कुबेर का, कोई दास कबीर. कोई दास कबीर का, कोई दास कबीर. और कभी बन सकता है वही रहे शहर या गांव. कभी बन सकता है वही जो रहे शहर या गांव, और स्वयं खड़ा रहे धूप में दे औरों को छांव. स्वयं खड़ा रहे धूप में दे औरों को छांव. दर्पण सच ही बोलता भले न डालो तोड़. दर्पण सच ही बोलता भले न डालो तोड़, और टूट टूट कर एक सच बनता लाख करोड़. टूट टूट कर एक सच बनता लाख करोड़. और एक दोहा, कल का कल होता नहीं और कल का कल है आज. बीते हुए कल और जो आने वाला है. कल का कल होता नहीं और कल का कल है आज, और जो जीता है आज को वो जीता है आज. जो जीता है आज को वो जीता है आज. जो कटने से डर गई
उड़ी नहीं आकाश। जो कटने से डर गई, जो कटने से डर गई, उड़ी नहीं आकाश। उस पतंग का पवन ने लिखा नहीं इतिहास। क्या बात है, बहुत उस पतंग का पवन ने लिखा नहीं इतिहास। बहुत अच्छे। और 2-3 दोहे जो जीवन के ऊपर हैं, जो मेरे बहुत प्रिय हैं। बहुत इरशाद साहब। क्षण भंगुर कहते जिसे है प्रभु का वरदान। क्षण भंगुर कहते जिसे है प्रभु का वरदान। और जीवन जीने की कला यदि सीखे इंसान, जीवन जीने की कला यदि सीखे इंसान। निखरो फूलों की तरह, बिखरो गंध समान। निखरो फूलों की तरह, बिखरो गंध समान। और 2 पल की है जिंदगी, जीकर दो सम्मान। 2 पल की है जिंदगी, जीकर दो सम्मान। और जीवन है यदि गीत तो भर इसमें संगीत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीवन है यदि गीत तो भर इसमें संगीत। और अगर संग्राम तो लड़कर इसको जीत। और अगर संग्राम तो लड़कर इसको जीत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बड़ा प्यारा दोहा है ये। प्यारा। और उसकी संदेश भी उतना गहरा है। अब जैसा कि आपने शुरू में पूछा था कि गुजरात में मेरे मतलब 80% जिंदगी जो है गुजरात में बीती है। बिल्कुल। तो गुजरात से मुझे बहुत ही लगाव है। हाँ जी। और गुजरात के प्रति मेरी और मेरे जैसे अनेक लोगों के मन में क्या भावनाएं होती हैं, वो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों से। कि जीना हमें सिखाती गुजरात की हवाएं। जीना हमें सिखाती गुजरात की हवाएं। पल पल को गुनगुनाती गुजरात की हवाएं। उत्तर हो या कि दक्षिण, पूरब हो या कि पश्चिम। उत्तर हो या कि दक्षिण, पूरब हो या कि पश्चिम। सबको गले लगाती गुजरात की हवाएं। जीना हमें सिखाती गुजरात की हवाएं। जो वक्त के थपेड़ों से डाल छोड़ बैठे। किन्हीं मजबूरियों में लोग आए होंगे कहीं से कहीं रोजी रोटी के लिए। जो वक्त के थपेड़ों से डाल छोड़ बैठे, वे फूल भी खिलाती गुजरात की हवाएं। 2-4 दिन की खातिर जब दूर इनसे जाते, 2-4 दिन की खातिर गर दूर इनसे जाते। सपनों में आ बुलाती गुजरात की हवाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जब याद में वतन की बेचैन हो उठे मन। जब याद में वतन की बेचैन हो उठे मन। आ लोरियां सुनाती गुजरात की हवाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है धन्य धरा जिसके दामन को चूमती है धन्य धरा जिसके दामन को चूमती ये। सोना इसे बनाती गुजरात की हवाएं। इनसे हमें मोहब्बत, हमसे इन्हें मोहब्बत। इनसे हमें मोहब्बत, हमसे इन्हें मोहब्बत। मन को बहुत सुहाती गुजरात की हवाएं। जीना हमें सिखाती गुजरात की हवाएं। लोरियों वाला पल पल को गुनगुनाएं। लोरिया सुनाती वाला दोबारा पढ़ दीजिए। जब याद में वतन की बेचैन हो उठे मन। जब याद में वतन की बेचैन हो उठे मन। आ लोरियां सुनाती गुजरात की हवाएं। जीना हमें सिखाती गुजरात की हवाएं। हमारे कवि कांत का भी एक अच्छा है। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा, મળીએ કરીને વંદન સંતાન સૌ તમારા। આપણે બધા હિન્દ દેવ ભૂમિના સંતાન છે, પણ ગુજરાતે બધાને આપ્યું છે, બધાને સ્વીકાર કર્યો છે, પોતાનામાં સમાવ્યા છે। इसीलिए तो मैंने कहा उत्तर हो या दक्षिण, हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहाँ के लोग यहाँ नहीं मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। यहाँ पर अश्विनी जी, यहाँ पर रह के भी आप कुछ साहित्यिक संस्थाएं चलाते हिंदी की, उसकी थोड़ी बातें करें। हाँ, ये साहित्यालोक नाम की संस्था, ये 1967 में इसकी स्थापना हुई है। और मैं इसमें 1989 में जुड़ा, जब पहली बार माँ सरस्वती कृपा से साहित्य से प्रेम हुआ, सर्जन से प्रेम हुआ। और पिछले लगभग 12 वर्ष से इस समय इसका अध्यक्ष हूँ मैं। और इसके लगभग 8 सहयोगी काव्य संकलन छप चुके हैं। यानी गुजरात के जो हिंदी कवि हैं उनकी प्रतिनिधि रचनाओं के संकलन जो धीमान जी ने अभी आपके सामने प्रस्तुत किए थे, वो यहाँ पर प्रकाशित किए गए हैं। ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और प्रतिमास
एक काव्य गोष्ठी अलग अलग विस्तारों में कवियों की अनुग्रह से ही होती रहती है। ये हमारी मूलभूत प्रक्रिया है, जिससे कविता की एक प्रयोगशाला भी चलती रहती है, कविता की पाठशाला भी चलती रहती है। एक दूसरे से मिलते हैं और भावनाओं से जुड़ने का मन होता है, बढ़ते जाते हैं। अश्विनी जी, आज के सर्जकों को आपका संदेश, आज के नए कवि हो, नए साहित्यकार हो, आप तो बहुत सालों से लिख रहे हो, आज का डिजिटल ज़माना है मोबाइल का, तो सर्जक को आपका अनुभव का संदेश दिए। देखिए, अनुभव मुझे ये है कि वैसे तो हम शास्त्रों में अपने पढ़ते आए हैं, भर्तृहरि ने कहा था कि संगीत साहित्य कला से विहीन व्यक्ति वो पशु के समान होता है। तो वास्तव में ये जो सर्जन की प्रक्रिया है हमको मनुष्य बनाती है। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि साहित्य या कोई भी कला अगर आप में है, अगर आप उसमें लगे हुए हैं तो ये हमेशा आपको आनंद देगी, आपको हमेशा प्रसन्नता देगी। इसमें कभी थकान नहीं लगेगी, कभी आपको दुख नहीं होने वाला है। लेकिन आपकी कला लोक भोग्य होनी चाहिए, जनहित में हमारे कार्य होने चाहिए। ये वास्तव में उसकी मूल भावना है। और कवि जो होता है या साहित्यकार जो होता है, वो एक प्रांत का, एक देश का नागरिक नहीं होता है, ये पूरे विश्व का नागरिक होता है। सही बात है। वो इसलिए सर्जक को चाहिए कि हमारी जो रचना है, हमारी कृति है, वो सर्वोत्कृष्ट हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, लेकिन हम उसको सूक्ष्मता से उसका सर्जन करें, ये आवश्यक है। उसमें जान हो, बिल्कुल जाना, हम अपना सर्वश्रेष्ठ उसके अंदर भरने की कोशिश करें। और जो कवि की अमरता होती है वो उसकी भावनाओं से ही आती है, और भावनाओं को अपनी कृति में, अपनी रचना में, अपने सर्जन में वो भरता है। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी जी, भारत भर में आप गए होंगे कवि सम्मेलनों में, कोई ऐसा यादगार प्रसंग हो, साहित्यिक प्रसंगों का, जो आपको हमेशा याद रहा हो? क्या बात है, इसमें मज़ा आ गया, इस कवि मिले, इस कवि के साथ काव्य पाठ किया, जो आपके वो अनुभव आप शेयर करिए। जी, एक बार हमको 2014 में त्रिपुरा में अगरतला है, और अगरतला में एक कवि सम्मेलन में जाने का अवसर मिला था। तो यहाँ से भी कवि गए थे और भारतीय स्तर से भी कवि आए थे। और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी आकर के सामने बैठे हैं। त्रिपुरा छोटा स्टेट है और राजधानी अगरतला ही है। और शाम के समय एक एक व्यक्ति ने जैसे एक एक शब्द को किस प्रकार से ग्रहण किया था, जबकि ज़्यादातर लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है वहाँ, लेकिन वो सबको ग्रहण करना चाहते थे, स्वीकार करना चाहते थे, आनंद ले रहे थे। और 3 घंटे तक जिस तरह से कार्यक्रम चलता रहा वो मेरे लिए अविस्मरणीय रहा। पांडे जी, सुना है कि आपकी बेटी की रचना बहुत शानदार है, और हम भी सुनना चाहते, दर्शक मित्रों को भी सुनाना चाहते, तो कृपा करके वो आप बेटी की रचना पढ़िए, बोलिए। हमारी सरकार भी चाहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, और बेटी को आगे बढ़ाने में ही पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का उद्धार है। तो बेटी के प्रति जब छोटी होती है उससे बड़ी होती है, 2-2 पंक्तियों में अलग अलग दृश्य हैं, आप देखिएगा। खुशियों का सावन बरसाती झड़ी हो गई है बेटी, खुशियों का सावन बरसाती झड़ी हो गई है बेटी, और जीवन के प्रति अरमानों की लड़ी हो गई है बेटी। अब थोड़ी और बड़ी होती है। पिता कह रहे फूलों जैसी प्यारी कोमल सी गुड़िया, पिता कह रहे फूलों जैसी प्यारी कोमल सी गुड़िया, और माँ की नजरों में जाने क्यों बड़ी हो गई है बेटी, माँ की नजरों में जाने क्यों बड़ी हो गई है बेटी। और जब से उसने देख लिया है दर्पण में खुद का चेहरा, जब से उसने देख लिया है दर्पण में खुद का चेहरा, और दुगुनी गति से चलने वाली घड़ी हो गई है बेटी। सास ससुर में माता पिता का स्नेह अगर मिल जाए तो, सास ससुर में माता पिता का स्नेह अगर मिल जाए तो, 2 परिवार जोड़ने वाली कड़ी हो गई है बेटी। और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का कर एहसास स्वयं में वह, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का
कर एहसास स्वयं में वह अबला मिट अपने पांवों पर खड़ी हो गई है बेटी। और आखिरी शेर है कि छोड़ विवशता थाम लिया उसने विकास का पथ जब से। छोड़ विवशता थाम लिया उसने विकास का पथ जब से, तब से बूढ़े माता पिता की छड़ी हो गई है बेटी। तब से बूढ़े माता पिता की। एक गीत प्रस्तुत है। बिल्कुल बिल्कुल। घटा बन के सावन डराने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। क्या बात है। आज तो खत का जमाना ही चला गया है। बिल्कुल। मोबाइल जब से आ गया है खत क्या होता है लोग भूल गए हैं। फिर भी तो कवि किस तरह से खत लिख रहा है ये दर्शाना चाहता है। नहीं, जो 80 के जमाने के हैं उनको तो मालूम है, जो पैदा हुए हो 90 तक पैदा हुए उनको मालूम है खत की बात। घटा बन के सावन डराने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। और प्रणय गीत कोयल सुनाने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। वाह वाह। बसंती बयारों के रसवंती झोंके, बसंती बयारों के रसवंती झोंके, बढ़ बढ़ के बाहें गहें हाह रोके। बसंती बयारों के रसवंती झोंके, बढ़ बढ़ के बाहें गहें राह रोके। और मधुबन भी खुशबू लुटाने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। घटा बन के सावन डराने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। और निमिया के झूले पे जियरा लुभाए, निमिया के झूले पे जियरा लुभाए, बढ़े पेंग इतनी कि अंबर लजाए। निमिया के झूले पे जियरा लुभाए, बढ़े पेंग इतनी कि अंबर लजाए। और गोधूल संध्या जगाने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। और घटा बन के सावन डराने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। मुंडेरिया पे आ के कागा जो बोले, मुंडेरिया पे आ के कागा जो बोले, आंखों में छाए नशा हौले हौले। कोई याद बीती याद आने लगे तक, कोई बात भूली हुई याद आए। समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। बहुत अच्छे। और गांव में आप देखे होंगे बांसों की झुरमुट होता है पूरा, तो उसमें गर्मी के महीने में जो हवा चलती है धीरे धीरे तो एक प्रकार का संगीत निकलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बांसों के झुरमुट से बंसी की धुन में, बांसों के झुरमुट से बंसी की धुन में, पुरवा बुलाती हो सैनों से वन में। और अचानक कदम डगमगाने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। घटा बन के सावन डराने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। और सरसों के फूलों की पियरी चुनरिया, सरसों के फूलों की पियरी चुनरिया, और महला दुमहला से सूनी सेजरिया। और रह रह के ताने सुनाने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। घटा बन के सावन डराने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। और आखिरी, कोई बात बिसरी हुई याद आए, कोई बात भूली हुई याद आए, हवा आके कानों में कुछ गुनगुनाए। कोई बात बिसरी हुई याद आए, हवा आके कानों में कुछ गुनगुनाए। और मधुर स्वप्न बिस्तर बिछाने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। घटा बन के सावन डराने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। प्रणय गीत कोयल सुनाने लगे तब समझना कि मैंने तुम्हें खत लिखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। દર્શક મિત્રો, આપણે અશ્વિની પાંડેજી સાથે મળી રહ્યા હતા। ગુજરાતમાં રહીને કેવા શ્વાસ કવિતાના ભરે છે, સુંદર કાવ્ય સંગ્રહો આપ્યા છે। દોહાથી લઈને એ દોહા કેટલા ઉત્તમ પ્રકારના કવિતા અને પાછા ગીત પણ સુંદર લખે છે। અશ્વિની પાંડેજીને મળીને એક આનંદ થયો છે। ખૂબ સાહિત્ય લોક સાથે જોડાઈને સાહિત્યની અનેક પ્રવૃત્તિઓ તેઓ કરી રહ્યા છે। ખૂબ ખૂબ વંદન કરીએ અશ્વિની પાંડેજીને અને જીટીપીએલ પરિવાર વતી અને આપ સૌ દર્શક મિત્રો વતી સ્ટુડિયોમાં આવવા માટે એમનો હાર્દિક આભાર માનીએ। આભાર સાહેબ।